My lovely students, welcome to Mathological. Let us start this session. In this session, we'll be discussing a DI set from ZAT 2022. A pencil maker ships pencils in boxes of sizes 50, 100 and 200. Due to packaging issues, some pencils break. About the 20 boxes he has supplied to a shop, the following information is available. So he has supplied 20 boxes to a shop and some pencils break inside boxes. So box number 1 through 6 have 50 pencils. Box 1 to 6 each have 50 pencils. Box 7 to 16 each have 100 pencils. And box 17 to 20 each have 200 pencils. Additionally, no box has less than 5% or more than 20% broken pencils. Minimum broken pencils are 5%, maximum are 20%. So between 5% to 20% broken pencils are there in a box. ठीक है, तो 5% is less than equal to broken pencils in a box which are less than equal to 20%. So if total pencils are 50, तो 5% will be 2.5. ठीक है, 2.5 हो जाएगा. And since that is the minimum value, और क्योंकि broken pencils integer में होगा, so minimum broken pencils in a box of 50 will be 3 and maximum will be 20%, which will be 10. So number of broken pencils will be between 3 and 10. And equality on both sides. If there are total 100 pencils in a box, the number of broken pencils will be between 5 and 20. Between 5 and 20, isn't it so? ठीक है. And if total 200 pencils are there, so broken pencils will be between 10 and 40. These are the three possible cases. Following is the frequency table of the number of broken pencils for 20 boxes. So there is precisely exactly one box with 5 broken pencils, number of broken pencils 5. Number of broken pencils 6, say हमारे 2 boxes हैं. 2 boxes are there, and there are 4 boxes with 7 broken pencils, 9 broken pencils के 3 boxes हैं, then 11, 10 वाले 0 हैं, 11 के there is exactly one box. There are 2 boxes with 15 broken pencils, then 19 का 1 box है, 20 के 3 boxes हैं, then this value is 29, then 30 का 0, 31 and this is 33. ठीक है, 32 0 है, 34 का 0 है, 35 एंड सो ऑन 0 है. यानी कि बेसिकली मैक्सिमम ब्रोकन पेंसिल्स कितनी है? 33, 29, 31, 33. दोज आर द लार्जेस्ट वैल्यूज. मिनिमम वैल्यूज है 5, 6 एंड 7 आर मिनिमम वैल्यूज. ओके. Question number 1, which of the following can possibly be the sequence of the number of broken pencils in boxes 7 to 16? Pause the video and try to solve it. Which of the following can possibly be the sequence of number of broken pencils in boxes 7 to 16? यानी कि 100 पेंसिल्स के जो हमारे बॉक्सेस हैं उनमें कितनी कितनी ब्रोकन पेंसिल्स हो सकती हैं. सो द वैल्यू शुड बी बिटवीन 5 and 20. Isn't it so? Neither less than 5. लेस देन 5 तो ऐसे किसी भी बॉक्स में नहीं है, और नॉर ग्रेटर देन 20. तो ऑप्शन बी को ऑब्जर्व करो. ऑप्शन बी में एक वैल्यू 29 आ रहा है नंबर ऑफ ब्रोकन पेंसिल्स का. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है फॉर श्योर. ठीक है, 5 से छोटी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज 5 से छोटी वैल्यू वैसे भी नहीं गिवन है. ओके, तो पहले तो बी तो हमारा एलिमिनेट हो गया. अब और क्या हम इसे स्टडी कर सकते हैं? व्हाट एल्स कैन वी फाउंड आउट? So in a box with 100 pencils, maximum can be 20 broken pencils and minimum can be 5. ठीक है, बट 200 वाला जो बॉक्स है उसमें मिनिमम भी 10 होगा. यानी कि इन अ बॉक्स ऑफ 200 पेंसिल्स देयर मस्ट बी एट लीस्ट 10 ब्रोकन पेंसिल्स. यानी कि इफ ब्रोकन पेंसिल्स का नंबर लेस देन 10 है, हमारे ग्राफ में गिवन है, सो दिस इज द वैल्यू 10 ब्रोकन पेंसिल्स. तो 10 से छोटी वैल्यूज के लिए all these values belong to either a box with 50 pencils or a box with 100 pencils. Isn't it so? या तो 50 pencils के बॉक्स का डेटा होगा या 100 pencils के बॉक्स का डेटा होगा. 200 वाला पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इन अ बॉक्स विद 200 pencils minimum broken pencils are equal to 10. Is that part clear? नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं यहाँ पे हमारे? लेस देन 10 में. तो लेस देन 10 वाले लेस देन 10 ब्रोकन पेंसिल्स में नंबर ऑफ बॉक्सेस है हमारे पास 1 + 2 + 4 + 3. सो टोटल बॉक्सेस आर 10. 10 boxes are there.
6 बॉक्सेज हैं 50 पेंसिल के, अब 50 पेंसिल के बॉक्सेज हैं, मैक्सिमम पेंसिल जो हमारी ब्रोकन हो सकती है दैट कैन बी इक्वल टू 10. So all 6 boxes with 50 pencils must have broken pencils less than or equal to 10. अब equal to 10 तो कोई भी नहीं है, यानी कि all these 10 जो हमारे boxes हैं इनमें से 6 boxes exactly होंगे which will be of 6 boxes of 50 pencils and remaining 4 boxes होंगे हमारे 100 pencils के, क्योंकि 200 वाला तो पॉसिबल ही नहीं है एक भी, जो कि लेस देन 10 जिसमें ब्रोकन पेंसिल्स, उसमें तो ग्रेटर देन 10 ही होगा. क्या है क्लियर है? So 6 boxes will be of 50 pencils and 4 boxes will be of 100 pencils. Is that clear? और क्वेश्चन हमसे exactly क्या पूछा है? Which of the following can possibly be a sequence of number of broken pencils in boxes 7 to 16, which is boxes with 100 pencils. So in those boxes we will have exactly four boxes जहां पे कि number of broken pencils will be less than 10. Exactly 4 boxes with ब्रोकन पेंसिल्स लेस देन इक्वल टू 10. अब इक्वल टू 10 तो 0 है, तो लेस देन 10 होगा. तो देखना है जहां पे वो चीज रिजेक्ट हो रहा है उसको बैठा देंगे. सो ऑप्शन ए में वी हैव एग्जैक्टली 4. सो ये काम तो कर रहा है यहाँ पे, बट ऑप्शन ए में गिवन है टोटल हमारे 4 boxes are there with 7 broken pencils, which is also satisfying the data because we have total 4 boxes with 7 broken pencils. Option C 7799. So यहाँ पे भी 4 boxes ही हैं, 7799 सेटिस्फाई भी कर रहा है. सो ये कंडीशन तो होल्ड कर रहा है ऑप्शन सी में भी. ऑप्शन डी में वी हैव टोटल 5 boxes 577979, यानी कि टोटल 5 boxes which are less than 10. सो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा. ऑप्शन ई में वी हैव अगेन 4 boxes but have 5 6 6 6. So there are 3 boxes with 6 broken pencils, but क्या ये पॉसिबल है? We have only 2 boxes with 6 broken pencils, not 3. Only 2 boxes are there with 6 broken pencils. So option E is also not possible. अब A और C के बीच में एक को सेलेक्ट करना है. ठीक है, C में we have one value 13 broken pencils, but we have no data, no box with 13 broken pencils, so that is also not possible. ऑप्शन सी भी रिजेक्ट हो गया. ऑप्शन ए मस्ट बी द आंसर. सो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल सीक्वेंसेस. जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो एग्जैक्टली, बट दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल सीक्वेंसेस कि जहां पे कि हमारा डेटा इज मैचिंग द गिवन कंडीशंस. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड conclusively from the given information. Cannot be inferred conclusively from the given information. Okay, first option A, 3 among the boxes numbered 17 to 20 have 29 31 and 33 broken pencils in some order. 3 among the boxes numbered 17 to 20 have 29 31 and 33 broken pencils in some order. Now we know from the previous question, हमने ऑलरेडी कंडीशन निकाला था कि इन अ बॉक्स विद 100 पेंसिल्स मैक्सिमम पेंसिल्स कितनी ब्रोकन हो सकती है? 20. इन अ बॉक्स विद 100 पेंसिल्स मैक्सिमम ब्रोकन पेंसिल्स कैन बी 20. ठीक है, सो मिनिमम होंगी हमारी 5 और मैक्सिमम होंगी 20. सो नंबर ऑफ ब्रोकन पेंसिल्स कैन नॉट बी मोर देन 20 इन अ बॉक्स विद 100 पेंसिल्स. Isn't it so? And in a box with 50 pencils, this value was between 3 and 10. So definitely boxes जहां पे number of broken pencils हमारी greater than 20 है, those must belong to boxes with 200 pencils, which are box number 17 to 20. So this option is correct. This can be inferred. This is right conclusion, and since this is right conclusion, option पूछा है cannot be inferred, so this will not be the answer. Option A will not be the answer. Option B, no box numbered 1 to 6 has more broken pencils than any box numbered 17 to 20. No box numbered 1 to 6 has more broken pencils than any box numbered 17 to 20. तो 17 20 में हमारे 200 पेंसिल्स वाले बॉक्स हैं और उनके लिए मिनिमम वैल्यू होगा 10, मिनिमम ब्रोकन पेंसिल्स 10, मैक्सिमम विल बी 40. तो मिनिमम वैल्यू आ रहा है 10 और यहां पे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है 10, और 10 पेंसिल्स का कोई बॉक्स है ही नहीं. ठीक है, सो डेफिनेटली 50 वाले जितने ही बॉक्सेस है हमारे 50 पेंसिल्स वाले बॉक्सेस, वहां पे नंबर ऑफ ब्रोकन पेंसिल्स कितना होगा? बिटवीन 5 and 9.
और 200 वाले जितने भी हैं उनमें नंबर ऑफ ब्रोकन पेंसिल्स विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 10. So no box numbered 1 to 6 has more broken pencils than any box numbered 17 to 20. That is also correct, can be inferred. And since this is correct, so this will not be the answer. Option C, a box with highest percentage of broken pencils has 100 pencils. A box with highest percentage of broken pencils, highest value नहीं, highest percentage of broken pencils. तो highest percentage कितना हो सकता है? 20% is possible, highest. Highest is 20%. अगर 50 pencils के box में highest percentage of pencils, यानी all the 20% broken pencils हो तो 10 होनी चाहिए, but 10 वाला तो 0 है. यानी कि 50 pencils का box कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कि 20% broken pencils हो. That is not possible. 100 pencils के box में 20% broken pencils होगा, that must be 20. Is it possible? Possible तो है, because we have total 3 boxes with 20 broken pencils. बट हमें इंश्योर करना पड़ेगा इन थ्री बॉक्सेस में से मिनिमम देयर इज वन बॉक्स विच कंटेन्स 100 पेंसिल्स, बिकॉज ये सारे के सारे हमारे 200 पेंसिल्स वाले बॉक्स भी तो हो सकते हैं. Isn't it so? That is also possible. But we know for sure that ये जो 29, 31 and 33 वाले बॉक्सेस हैं, all 3 boxes, these 3 boxes belong to 200 पेंसिल वाला बॉक्सेस. Because 100 पेंसिल वाला बॉक्स में 20 से ज्यादा broken pencils are not possible. Isn't it so? So all 3 boxes are 200 pencils वाला box. And since total boxes of 200 pencils are box number 17 to 20, so box 17 to 20 total 4 boxes हैं हमारे, 4 boxes with 200 pencils, and out of these 4, 3 boxes are here. So only one box can be of 20 pencils at max. ठीक है, so maximum one box of 20 pencils, maximum one of 20 pencils, 20 broken pencils. ठीक है, 20 broken pencils का मैक्सिमम वन बॉक्स हो सकता है. तो बचे हुए जो 2 बॉक्सेस होंगे, दोज विल डेफिनेटली बी फ्रॉम बॉक्सेस नंबर 7 to 16. क्या ये क्लियर है? एक सेकंड ऑप्शन सी की बात कर रहे थे हम, ऑप्शन डी पे अननेसेसरी लिख दिया. ठीक है, सो there must be at least one box of 100 pencils with 20 pencils exactly, so that must be the highest percentage. So a box with the highest percentage of broken pencils has 100 pencils. That is also correct. This also can be inferred, and hence will not be the answer. This will not be the answer. Okay. ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा. ऑप्शन डी की बात करते हैं. ऑप्शन डी, 4 among the boxes numbered 7 to 16 have less than 10 broken pencils. Have less than 10 broken pencils. तो ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज इनिशियल लेस देन 10 broken pencils वाले बॉक्सेस टोटल 10 थे, एंड आउट ऑफ 10 6 boxes वर फ्रॉम बॉक्स नंबर 1 to 6 एंड 4 boxes वर फ्रॉम 7 to 16. So this is also concluded, can be inferred. So this will not be the answer, hence option E must be the answer. Option E must be the answer. Exactly 3 boxes have 20% broken pencils. अब यहाँ पे कह रहा है exactly 3 boxes have. कौन से 3 boxes होंगे? ये वाले 3 boxes हैं. Because 50 pencils का कोई बॉक्स ऐसा नहीं है जिसमें कि exactly 20% broken pencils हो, because 10 pencils broken pencils वाला एक भी बॉक्स नहीं है. So 50 pencils में तो पॉसिबल नहीं है. 200 pencils में 40 broken pencils होनी चाहिए एक बॉक्स में, वही पॉसिबल नहीं है. बट 100 pencils के केस में 20% is 20 broken pencils. ऐसे 3 बॉक्सेस हमारे पास जिनमें 20 broken pencils हैं, बट all 3 boxes belong to 100 pencil वाला केस, that is not sure. That is not sure because हमने देखा कि these 3 boxes belong to 200 pencil वाला केस, बट एक बॉक्स फिर भी बच जाता है जिसमें 200 pencils होंगी. So that box can be a box with 20 broken pencils. पॉसिबल भी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. So exactly 3 तो नहीं कह सकते for sure. 2 or 3 will be the correct value. So this cannot be inferred, and hence this must be the answer. Okay. This must be the answer in this case. Clear? Next question. Next is, suppose that additionally it is known that the number of broken pencils in boxes 17 to 20 are in an increasing order. एक increasing order में है. Which among the following additional information, if true, is not sufficient? Not sufficient to uniquely know number of defective pencils in each of the boxes numbered 17 to 20. क्वेश्चन कह रहा है नॉट सफिशिएंट, यानी कि बाकी केसेस में इन 4 out of 5 ऑप्शंस द डेटा गिवन विल बी सफिशिएंट टू नो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेंसिल्स इन ईच ऑफ द बॉक्सेस नंबर्ड 70 to 20.
तो बॉक्स नंबर 17, बॉक्स नंबर 18, बॉक्स नंबर 19 एंड बॉक्स नंबर 20. अब इनमें से इन 4 में से 3 बॉक्सेस आर देयर, which are these ones with 29, 31 and 33 broken pencils. And since increasing order में है broken pencils का, ठीक है, so box number 20 में कितनी broken pencils होंगी? Number of broken pencils will be 33. In box number 19 this value will be 31. In box number 18 this will be 29. बट क्वेश्चन है बॉक्स नंबर 17 में कितनी ब्रोकन पेंसिल्स होंगी, यही पता लगाना है, इसी के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए. ठीक है, बिकॉज दैट वैल्यू कैन बी 20 और 19 और 15 और 11. ठीक है, 11, 15, 17, 19 में से कोई भी एक वैल्यू हो सकता है. 11 से छोटा तो नहीं हो सकता बिकॉज 10 पे तो कोई भी नहीं है. तो 11, 15, 17 और 19 और 20, सॉरी 17 तो है ही नहीं, 11, 15, 19 एंड 20 आर द पॉसिबल वैल्यूज. अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, सिंस हर एक ऑप्शन को हमें चेक करना है, हर एक ऑप्शन से वेरीफाई करना है और डेटा हमारा कॉम्प्लेक्स है, सो दिस क्वेश्चन इन एग्जाम कंडीशन शुड हैव बीन अवॉइडेड. फर्स्ट और सेकंड वाले तो हमने कर लिया, बट ये क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए था एग्जाम में, अगर एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन तो. ठीक है, फर्स्ट 2 को करने के बाद में दिस मस्ट बी अवॉइडेड. ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन ए इज सेइंग बॉक्सेस नंबर 17 to 20 contain a total of 108 defective pencils. 17 to 20 contain a total of 108 defective pencils. अब 18, 19, 20 का तो टोटल हमें पता है. दिस इज 30 प्लस 30 60, 93. तो अगर टोटल 108 है तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग 93 प्लस 15 इज इक्वल टू 108. सो बॉक्स नंबर 17 मस्ट कंटेन 15 ब्रोकन पेंसिल्स, 15 डिफेक्टिव पेंसिल्स. तो ऑप्शन ए हमें यूनिकली बता रहा है वैल्यू सारे के सारे बॉक्सेस का. तो दिस इज इनसफिशिएंट, तो आंसर नहीं होगा बिकॉज दिस इज सफिशिएंट. यहां से हमें वैल्यू मिल रहा है कि बॉक्स नंबर 17 मस्ट कंटेन 15 ब्रोकन पेंसिल्स. ओके, ऑप्शन बी. Option B is saying box number 17 contains more defective pencils than any box from among boxes numbered 1 to 14. Box number 17 contains more defective pencils than any box from boxes numbered 1 to 14. ठीक है, सो यहां से क्या हम यूनिकली डिफाइन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? फ्रॉम बॉक्स नंबर 1 to 14 जितनी भी हमारे ब्रोकन पेंसिल्स होगा, बॉक्स नंबर 17 में उससे ज्यादा है, इट हैज मोर डिफेक्टिव पेंसिल्स. ठीक है, सो बॉक्स नंबर 18, 19, 20 तो क्लियर है हमें. अब बॉक्स नंबर 1 to 14 हो गया, बॉक्स नंबर 17 हो गया और बॉक्स नंबर 15 और 16 भी हो गया. ठीक है, तो ऑप्शन बी के लिए बात करते हैं. तो बॉक्स नंबर 1 to 14 में कितना वैल्यू हो सकता है? कोई वैल्यू पॉसिबल है, बट लेट अस से अगर हमने एक 20 पेंसिल वाला बॉक्स पुट कर दिया ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग, इफ फ्रॉम बॉक्सेस 1 to 14 वी हैव वन बॉक्स विद एग्जैक्टली 20 ब्रोकन पेंसिल्स. ठीक है, अगर एक बॉक्स होगा 20 ब्रोकन पेंसिल्स वाला, तो बॉक्स 17 में कितनी पेंसिल्स होंगी फिर? कैन वी हैव अ वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 20? नॉट पॉसिबल, बिकॉज अब कोई डेटा बचा ही नहीं हमारा 20 से ज्यादा ब्रोकन पेंसिल वाला, वो तो सब 18, 19, 20 बॉक्स में फिट हो गए. ठीक है, सो अब बॉक्स 17 में कितनी पेंसिल्स पुट कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है, गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो. तो डेफिनेटली देयर विल नॉट बी एनी बॉक्स विद 20 ब्रोकन पेंसिल्स, बिकॉज इस वाले केस में इन बॉक्स नंबर 17 देयर मस्ट बी ग्रेटर देन 20 ब्रोकन पेंसिल्स. मिनिमम 21 होना चाहिए, बट 21 वाला तो कोई केस है नहीं हमारे पास. देयर इज नो बॉक्स विद 21 ब्रोकन पेंसिल्स. ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो समझने में टाइम लगेगा. टेक योर टाइम, पॉज करके एक बार ध्यान से अपने एंड पे समझने की कोशिश करो कि जो बात कही जा रही है, बिकॉज इट विल टेक टाइम. ठीक है, अभी ऑप्शन बी तो फिर भी इजी है, आगे के ऑप्शंस में और भी ज्यादा चीजें तुम्हें अनकंफर्टेबल जोन में डालेंगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है. ठीक है, तो 20 ब्रोकन पेंसिल्स वाला केस अगर हमने ले लिया, एक भी बॉक्स ले लिया फ्रॉम बॉक्स नंबर 1 to 14, देन डेफिनेटली बॉक्स नंबर 17 मस्ट कंटेन मोर देन दैट, बिकॉज मोर डिफेक्टिव पेंसिल्स होना चाहिए, और वो पॉसिबल नहीं है. तो ये केस तो नहीं होगा. दैट इंप्लाइज दैट नो बॉक्स विद 20 ब्रोकन पेंसिल्स विल बी देयर इन बॉक्स नंबर 1 to 14. और 20 ब्रोकन पेंसिल्स वाले हमारे 3 बॉक्सेस हैं इन टोटल, 3 बॉक्सेस आर देयर. ठीक है, सो ऑल 3 बॉक्सेस मस्ट बी आउटसाइड बॉक्स नंबर 1 to 14, यानी 15, 16, 17 में ही होंगे. तो बॉक्स नंबर 15, बॉक्स नंबर 17 और बॉक्स नंबर 16, इन सब में 20 डिफेक्टिव पेंसिल्स होंगी, और बस यहां से डिटरमाइन होगी वैल्यू यूनिकली कि बॉक्स नंबर 17 मस्ट कंटेन 20 ब्रोकन पेंसिल्स, बिकॉज दैट इज द ओनली केस. तो ऑप्शन बी भी सफिशिएंटली बता रहा है, तो आंसर नहीं होगा.
ऑप्शन बी भी सफिशिएंटली बता रहे हैं, सो दिस विल नॉट बी द आंसर. इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके. क्या ही क्लियर है? आगे की बात करते हैं हम. सो फर्स्ट फ्रेश पेज पे डेटा लिखते हैं थोड़ा सा. ठीक है, देखो अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी, डी एंड ई के लिए. बट दिस डेटा विल बी स्लाइटली कॉम्प्लेक्स, तो अब इसको समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट 10 बॉक्सेस फ्रॉम बॉक्स नंबर 1 to 10, बिकॉज फर्स्ट 10 में क्या है, लेस देन 10 वैल्यूज आ रही हैं. तो लेस देन 10 डिफेक्टिव पेंसिल वाले बॉक्सेस में हमारे दो तरह के बॉक्सेस आ सकते हैं, या तो 50 पेंसिल का बॉक्स होगा या फिर 100 पेंसिल का बॉक्स होगा. ठीक है, तो लेस देन 10 ब्रोकन डिफेक्टिव, इफ दोज आर लेस देन 10, ऐसे कितने बॉक्सेस हैं? 10 बॉक्सेस आर देयर. और सम कितना आ रहा है उनमें? 1 बॉक्स विद 5 पेंसिल्स, 2 विद 6, 5, 6, 7 एंड 9. तो सम आ रहा है टोटल हमारा 5, 6 into 2, 7 into 3, 7 into 4 and 9 into 3. टोटल सम आ रहा है हमारा 12 plus 5, 17 plus 28, 45 plus 27, 72. तो sum of broken pencils is 72. ठीक है, and out of these 10 boxes we have exactly 4 boxes with 50 pencils. Sorry, 6 boxes है ना, 6 boxes होंगे. एक सेकंड, 1 2 6, 6 boxes with 50 pencils and 4 boxes with 100 pencils. Six boxes with 50 pencils and 4 boxes with 100 pencils. Okay. So what can be minimum value? Minimum value of broken pencils in those 6 boxes. कितना minimum value होगा? ठीक है, इन 6 boxes में minimum broken pencils कितना हो सकता है? मिनिमम तब होगा जब सारी ब्रोकन पेंसिल्स जो मिनिमम वाली वैल्यूज होंगी वो सब आ जाएंगी इन 6 बॉक्सेस में. तो मिनिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है? मिनिमम विल बी 5 प्लस 6 प्लस 6, यानी कि फर्स्ट 6 बॉक्सेस ले लो, तो 5 प्लस 12 प्लस बाकी 3 बॉक्सेस में 7 ब्रोकन पेंसिल्स ले लो, मिनिमम तब होगा. तो 5, 6, 6, 7, 7, 7. तो दिस सम इज 21 प्लस 12, 33 प्लस 5, 38. Isn't it? मिनिमम वैल्यू आ रहा है 38. और मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? इन 6 बॉक्सेस में मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी हाईएस्ट वैल्यूज, हाईएस्ट 6 वैल्यूज, यानी कि 999 और फिर 777. तो दिस टोटल कम्स आउट टू 48. सो मिनिमम इज 38 एंड मैक्सिमम इज 48. ठीक है, तो जो 4 बॉक्सेस हमारे बच गए 100 पेंसिल्स वाले, यहां पे मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? तो सम तो फिक्स्ड है हमारा 72 होगा. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ब्रोकन पेंसिल्स इन 4 बॉक्सेस विल बी व्हेन वी विल टेक मैक्सिमम वैल्यू फॉर द रिमेनिंग 6 बॉक्सेस. तो 6 में रिमेनिंग है 48, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा हमारा 72 माइनस 48 यानी कि 24. और मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगा जबकि हम मिनिमम वैल्यू लेंगे बचे हुए 6 बॉक्सेस में. तो 6 बॉक्स में रिमेनिंग मिनिमम वैल्यू इज 38, सो मैक्सिमम वैल्यू विल बी 34. यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ टोटल डिफेक्टिव पेंसिल्स विल बी 24 इन बॉक्स नंबर, इन फर्स्ट 4 बॉक्सेस, 4 बेसिकली बॉक्सेस ऑफ 100 पेंसिल्स, और मैक्सिमम वैल्यू विल बी 34. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, अब बॉक्सेस का नंबर इंपॉर्टेंट नहीं, बिकॉज नंबर हमारा 7 से 16 के बीच में होगा इन बॉक्सेस का, बट ऐसे 4 बॉक्सेस हो गए. ठीक है, अब लास्ट के 3 तो क्लियर है हमें कि दिस वैल्यू इज 29, (29), 31, 33. ठीक है, सो बॉक्स नंबर 18, 19, 20 तो पहले से क्लियर है हमें. 29, 31 एंड 33 ब्रोकन पेंसिल्स. बॉक्स नंबर 17 के लिए पता लगाना है. So data option C is saying boxes number 7 to 16 contain a total of 133 defective pencils. A total of 133 defective pencils. ठीक है, ओके. और फिर ऑप्शन डी हमारा कह रहा है बॉक्स नंबर 11 to 16 contain a total of 101 defective pencils. एंड ऑप्शन नंबर ई कह रहा है बॉक्सेस नंबर 7 to 16 contain a total of 124 defective pencils. ओके, सो फर्स्ट 10 का डेटा तो हमने एनालाइज कर लिया. अब बात करते हैं इन वैल्यूज की. और these values, these are 7 boxes in total. ठीक है, out of these 7 boxes there will be one box with 200 pencils, because 200 pencils का एक जो बॉक्स रह गया बॉक्स नंबर 17, that must contain
ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 ब्रोकन पेंसिल्स, ठीक है। सो एक बॉक्स होगा 200 पेंसिल्स का एंड रिमेनिंग 6 बॉक्सेस विल बी ऑफ 100 पेंसिल्स। ओके, और कितनी ब्रोकन पेंसिल्स हमारे पास इफेक्टिवली इन 7 बॉक्सेस में? वी हैव डेटा 15, 15 एंड देन 19, 20, 20 एंड 20। एक सेकंड, 11 वाला ये बॉक्स रह गया था, इसको भी तो ऐड करोगे ना, 11 वाला ये ऐड नहीं किया। So these are total 7 boxes. 11 is also there. So out of these 7 values, 6 values will be pertaining to 100 pencil वाला boxes and 1 value will pertaining to 200 pencil वाला boxes. तो यहाँ पे minimum value कितना आएगा? Minimum value for these 6 boxes will be, जबकि एक maximum value को हटा दोगे, ठीक है। तो minimum value हमारा हो जाएगा 11 plus 15 plus 15 plus 19 plus 20 plus 20 plus 20, last वाला 20 नहीं रहेगा, 6 boxes only. So this value will be 40 plus 19, 59 plus 30, 89 plus 11. So this will be 100, ठीक है। जब एक 20 वाले बॉक्स को रिमूव कर दिया हमने, या तो टोटल सम की बात करते हो, सारे 7 बॉक्सेस का सम कितना आ रहा है? दिस सम इज 120, तो 20 रिमूव कर दोगे, सम हमारा बचेगा 100। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा सम का? जबकि 11 को रिमूव करोगे 120 में से, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 109, ठीक है। और टोटल पॉसिबल रेंज ऑफ वैल्यूज क्या होगा? मिनिमम वैल्यू भी 100। जब 20 को रिमूव किया है, 20 को रिमूव किया है, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा? 20 बजाय 19 को रिमूव कर दो तो 101 आ जाएगा। जब 19 को रिमूव करोगे, इफ यू रिमूव बॉक्स विद ब्रोकन पेंसिल्स 15, तो सम क्या आ जाएगा हमारा? 105। एंड इफ यू रिमूव बॉक्स विद ब्रोकन पेंसिल्स 11, सम आ जाएगा 109। इज दैट पार्ट क्लियर? अब देखो, हमारा 4 पेंसिल्स जो इनिशियल थी, वहां पे मिनिमम वैल्यू आ रही है 24, मैक्सिमम आ रहा है 34, और बची हुई 6 पेंसिल्स के सम की पॉसिबिलिटीज है 100, 101, 105, 109। ओके, क्लियर है? इज दैट पार्ट क्लियर? सो ऑप्शन सी कह रहा है बॉक्स नंबर 7 to 16 which is boxes containing 100 pencils contain a total of 133 defective pencils. तो क्या 133 सम हम यूनिकली डिटरमाइन कर पाएंगे कि नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे? अगर यूनिकली डिटरमाइन कर पाएंगे तो डेफिनेटली एक यूनिक नंबर मिलेगा हमें फॉर बॉक्स नंबर 17, जो बॉक्स हमने रिमूव किया होगा। अगर नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे तो फिर यूनिक नंबर नहीं मिलेगा हमको, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ वी एड 24 इज 4 बॉक्सेस का सम, और फिर एक सम यहां से उठाएंगे, ठीक है। सो इफ वी एड 24 प्लस 109, तो 24 प्लस 109, दिस वैल्यू इज 133, और 109 जब हम सम ले रहे हैं, so we are removing box with 11 broken pencils. So this 11 that is remaining will be for box number 17. Broken pencils in box number 17 because हमने 11 को रिमूव किया है, तब हमारा 133। बट क्या 133 लाने का यही अकेला तरीका है? क्या और भी वैल्यू पॉसिबल है? और भी तरीके से हम वैल्यू ला सकते हैं 133? इज दैट पॉसिबल? अगर और किसी तरह से 133 हमें लाना है, तो यहां से कोई और वैल्यू लेना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली हमें एक सम का वैल्यू यहां से लेना पड़ेगा, ठीक है। सो मिनिमम वैल्यू था 24, मैक्सिमम वैल्यू था 34, और क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं यहाँ पे? 34 था व्हेन वी हैड टेकन ऑल 3 9s एंड 1 7, ठीक है। 2 9 2 7 को ले लें तो फिर वैल्यू हमें मिल जाएगा 32। तो 24 34 32 भी मिल सकता है पॉसिबल वैल्यू। और अगर 32 पॉसिबल, 32 कब मिलेगा? व्हेन वी हैव 2 9s एंड 2 7s। और अगर यहां से हमने 32 ले लिया तो 32 प्लस 101, दिस इज ऑल्सो 133। एंड इन दैट केस कौन सा हमने पेंसिल बॉक्स रिमूव किया है? 19 वाला। 19 मस्ट बी नंबर ऑफ ब्रोकन पेंसिल्स इन बॉक्स 17। सो एक से ज्यादा वैल्यूज मिल रहा है, तो ऑप्शन सी इज डेफिनेटली नॉट सफिशिएंट, बिकॉज एक से ज्यादा वैल्यूज मिल रहा है, तो दिस मस्ट बी द आंसर। ऑप्शन सी मस्ट बी द आंसर। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, हमें एक से ज्यादा वैल्यूज जिस भी ऑप्शन से मिलता वो नॉट सफिशिएंट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी मस्ट बी द आंसर, बिकॉज एक से ज्यादा वैल्यूज मिल रहा है वहां पे हमें, ठीक है। या तो बॉक्स 17 विल बी कंटेनिंग 11 ब्रोकन पेंसिल्स और इट विल बी कंटेनिंग 19 ब्रोकन पेंसिल्स, तो डेफिनेटली ऑप्शन सी मस्ट बी द आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्या यहां तक बात समझ में आती है?
अब ऑप्शन ई की भी बात कर लेते हैं, फिर ऑप्शन डी की उसके बाद में बात करेंगे। ऑप्शन ई कह रहा है हमसे, आंसर तो मिल गया हमको, बट जस्ट इन केस ऑप्शन की सी की बजाय ये ऑप्शन लास्ट में गिवन होता तो बाकी वो भी चेक करना होता। ऑप्शन ई सेइंग बॉक्सेस नंबर 7 to 16 कंटेन टोटल ऑफ 124 डिफेक्टिव पेंसिल्स। अब अगर हमें 124 सम बनाना है सारे 10 बॉक्सेस का, तो वी विल 124 सम एक ही तरह से बन सकता है, दिस विल बी 100 + 24, यानी कि मिनिमम वैल्यू फ्रॉम हियर विच इज 24 से छोटा वैल्यू ले नहीं सकते, और मिनिमम वैल्यू फ्रॉम हियर एज वेल, दोनों जगह से तुम मिनिमम वैल्यू ले रहे हो, यानी कि उससे छोटी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है लेना। सो 100 लिया तुमने यहां से विच इज मिनिमम, 24 लिया यहां से विच इज ऑल्सो मिनिमम, तो 124 को सम को एक ही तरह से बना सकते हो जब तुमने दोनों से मिनिमम वैल्यू लिया है। एंड इन दैट केस 20 विल बी नंबर ऑफ ब्रोकन पेंसिल्स इन द रिमेनिंग बॉक्स, जिस बॉक्स को हमने रिमूव किया है। So answer will be box number 17 will be containing 20 broken pencils. So यहाँ से यूनिकली मिल रहा है आंसर, एंड हेंस दिस विल नॉट बी द आंसर। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए आंसर होगा, ना बी आंसर होगा, ई भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी डेफिनेटली द आंसर इज ऑप्शन सी फॉर श्योर। ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे इसके बाद में, बट क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? पॉज द वीडियो, टेक योर पॉज, टेक योर टाइम, और डेफिनेटली इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में कतई नहीं करना है, डेफिनेटली अवॉइड करना है, बट क्या भी समझ पा रहे हो? क्या भी ये बात क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन सी शुड बी द आंसर। अब बात करते हैं ऑप्शन डी का। ऑप्शन डी कह रहा है हमसे बॉक्सेस नंबर 11 to 16 कंटेन टोटल ऑफ 101 डिफेक्टिव पेंसिल्स, यानी कि 6 बॉक्सेस इन टोटल कंटेन टोटल 101 डिफेक्टिव पेंसिल्स। ओके, ठीक है, 6 बॉक्सेस कंटेन अ टोटल ऑफ 101 डिफेक्टिव पेंसिल्स। तो अब देखो 101 सम हमारा कैसे बन रहा है, ये कैसे बन रहा है ना हमारा 6 बॉक्सेस सम 101, 11 15 15 19 20 20, जो हमने 6 हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यूज को लिया है। ठीक है, अब तुम 6 हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यूज के अलावा कुछ भी और वैल्यूज को लोगे तो 101 सम नहीं बना पाओगे फिर अदरवाइज। ठीक है, तो यूनिकली वैल्यू हमें कब मिल रहा है? जब 11 15 15 19 20 20 को हमने ऐड किया तो हमें वैल्यू मिल रहा है 101 फॉर 6 बॉक्सेस। ठीक है, क्या ही क्लियर है? अब अगर किसी भी एक वैल्यू को तुम रिप्लेस करते हो तो क्या 101 सम बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, क्या ही क्लियर है? क्योंकि रिप्लेस करके तुम अगर इससे ज्यादा वैल्यू की तरफ लेके जाओगे अल्टीमेटली। ठीक है, 101 सम हमारा कब बन रहा है? जब 19 वाले बॉक्स को हमने रिमूव किया, एक से 19 वाले को रिमूव किया तब बन रहा है। 19 वाले को रिमूव करने में बन रहा है 20 + 20 + 15 + 15 + 11, दैट इज 101। ठीक है, 3 हमने लिया 20 3 लिया 20 20 20 60 + 15 + 15 + 11, तो उस केस में हमारा सम बन रहा है इक्वल टू 101। दैट इज द ओनली वे, किसी और तरीके से 101 सम नहीं बन पाएगा। तो 101 सम भी हमारा यूनिकली बन रहा है, और उस केस में 19 पेंसिल्स होंगी बॉक्स नंबर 17 में, तो यहां से भी यूनिक वैल्यू मिल रहा है, दैट इज व्हाई दिस विल नॉट बी द आंसर। क्लियर है? तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर इन दिस केस। अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन के चक्कर में पड़ गए तो फिर न सिर्फ ये क्वेश्चन जाएगा, ये तो नहीं करोगे, अटक जाओगे इसमें, बट बाकी क्वेश्चंस का भी समय खराब करोगे। तो डेफिनेटली एग्जाम में सच क्वेश्चंस आर डेफिनेटली अवॉइडेबल। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को तुमने अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद में आगे बढ़ जाना है, जहां पे लगे कि खतरा है बस खतरे से आगे बढ़ जाना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और अगर थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है तो टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की कोशिश करो उसको, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो स्किप मार दो। फर्स्ट 2 को समझो, आगे बढ़ जाओ, और बाकी DI के सेट्स को देख लो। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो डेफिनेटली एग्जाम में स्किप ही करना है, बस जो मेथड है, जो ठीक है चीज़ हमने प्रोसेस किया है वो समझना इंपॉर्टेंट है, सो दैट किसी और क्वेश्चन में उसको यूज कर सको। ओके, चलो दैट्स ऑल इन दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।